Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, in our last videos, we have already discussed about holistic progress card, or in this video, I'll be showing you a design of the holistic progress card. I mean, either you can get it printed well in advance and then you can fill it, or you can go ahead with the E kind of holistic progress card as well, a kind of portfolio as well. I'm just going to show you like this is the design that you can have. Like it's a sample holistic progress card. So here, obviously, you will be giving some instructions like about what is objective of creating this holistic progress card, what have you covered in it, what are the goals, like activity-based learning, experiential learning, learning by doing. I mean, such kind of activities that you are focusing on. So what is your criteria for assessment, what all activities you will be doing? So here we have mentioned the levels, beginner, progressing, proficient, और यहाँ पर हमने उसका interpretation we have mentioned like what state the child is at. I mean, the student is at the beginning stage, the child is at the progressing stage, maybe the child is able to meet some part of the target competency independently but needs support or hand holding or scaffolding occasionally. And when the child is proficient, the स्टूडेंट इज एबल टू मीट द टारगेट कॉम्पिटेंसी इंडिपेंडेंटली। तो ये बच्चे के लेवल है, राइट, कि हर एक चीज सपोर्ट के साथ करता है, या थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, या द चाइल्ड इज एबल टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। तो किस लेवल पर बच्चा है आपने वो वहां पर मेंशन किया उसका पूरा इन डिटेल, राइट। तो सारी चीजें आपने यहाँ पर मेंशन की हैं, और आप इसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं वो आपको दिखाऊंगी। लाइक ग्लिम्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे एक स्टूडेंट का पिक्चर आप लगाएंगे, right? It can be a passport size picture, it can be a very good picture while the child is doing some activity, and then the glimpses of my family. Let the child stick the same. You can have most of the classes we have are our family activity, family tree activity. Let the child either draw or paste. That can be done in any way. I mean, if the child is drawing or the child is pasting, that is perfectly fine, right? As it's mentioned, paste a photo or draw a picture of you and your family in the given space. कि बच्चा किस तरीके से वो डिपिक्ट करना चाहता है through stick images. I mean, जैसे भी बच्चा उसको बनाना चाहे, let the child do it. And the child is writing his or her name, and then height, weight, birthday. My birthday falls on this day. Things I like, who are my friends, my favorite food, color, sport, animal. I mean, we're talking about myself. I'm all about me. And then next, we are talking about developmental goals. And the first development goal I have already discussed in my previous videos in detail. Developmental goal 1, health and well-being. If I talk about health and well-being, here are different key competences mentioned over here. सिर्फ आपको इस वीडियो में I'm showing you the design. Key competencies मैं पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से explain कर चुकी हूँ. You can explore even Newton Bharat as well. तो इस तरीके से आप ये टर्म 1, टर्म 2, आप क्या इसमें हाईलाइट कर रहे हैं इन दैट डेवलपमेंटल गोल नंबर 1। आप बच्चे का प्रो सोशल बिहेवियर कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, यू आर टॉकिंग अबाउट द मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया है कि अगर आप हाईलाइट नहीं भी करते डेवलपमेंटल गोल्स और एक ही जगह पर आप सारे गोल मेंशन करते हो, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन, बट ये थोड़ा सा एक अच्छे से वेल अरेंज लगता है, राइट, कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट गोल के नीचे अलग अलग आप मेंशन कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्किल्स आप हाईलाइट कर रहे हैं, और उसके आप डिस्क्रिप्टर मेंशन कर रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टर आप खुद बना सकते हैं, डिस्क्रिप्टर आप निपुण भारत की गाइडलाइंस में से ले सकते हैं, लाइक व्हाट आर सिलेबस यू आर कवरिंग। And then we have got developmental goal. Next one, effective communication. पहले health and hygiene का था, अब effective communication. इसमें हम क्या बात कवर करेंगे? फर्स्ट लैंग्वेज स्किल के डिस्क्रिप्टर है, फर्स्ट लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी हैं, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बच्चा एक्वायर करना शुरू कर रहा है, एंड देन आपके ओवरऑल रिमार्क, राइट। तो उसके बाद में हमारे पास डेवलपमेंटल गोल आ गया इन्वॉल्व्ड लर्नर्स, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट की कॉम्पिटेंसेज। सेंसरी डेवलपमेंट है बच्चे की, न्यूमरेसी स्किल की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, सीक्वेंस एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, राइट, इसके डिस्क्रिप्टर्स हैं। एंड देन वी हैव गॉट न्यूमरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट, एंड देन वी हैव गॉट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो देखिए एक फॉर्मेट बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ईच डेवलपमेंट गोल टीचर के ओवरऑल रिमार्क्स, राइट, ये नहीं कि पूरा आपको पेज भर के रिमार्क देना है, whatever you want to give, okay, you can arrange it accordingly. This is
एंटायरली अप टू यू, आप किस तरीके से उसको करना चाहते हैं। देन सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि हम सेल्फ असेसमेंट कैसे कराएं, पीयर असेसमेंट कैसे कराएं, होलिस्टिक कैसे होगा। तो हियर यू कैन लुक एट इट, सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी, जो आपने इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटी कराया है, बच्चे ने जो एक्टिविटी क्लास में कोई टास्क किया है, एग्जाम्पल भी मेंशन है, कोई क्ले वर्क किया है, छोटा बच्चा है, ड्राइंग कर रहा है, गेम प्ले कर रहा है, कलरिंग शीट है, पपेट मेकिंग हो रहा है, मॉडल मेकिंग है, या स्टोरी नरेट कर रहा है, या मतलब जो भी वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग इन परफॉर्मिंग आर्ट्स और visual arts or whatever it is. Now the teacher must help the children filling this sheet if required by the children. For small children, teachers may fill based on observation and discussion. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। बड़ा थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को बता सकते हैं कि इसने कैसा किया, कितने आप स्टार दे रहे हैं, कितना स्माइली दे रहे हैं, राइट, कौन से लेवल पर है, कैसा आपको लगा। तो द चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू डू दैट। नाउ द एक्टिविटी 1, आई एंजॉय द मोस्ट, मेरे को सबसे बेहतरीन बढ़िया कौन से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना लगता है। एक्टिविटीज दैट आई फाइंड डिफिकल्ट टू डू, एन एक्टिविटी दैट आई एंजॉय डूइंग विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से आप टर्म 1 एंड टर्म 2 का दोनों में आप फिल कर सकते हैं। मे बी द चाइल्ड इज ड्रॉइंग इट, कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी पसंद है। मे बी द चाइल्ड इज राइटिंग, मे बी बच्चे को आउटडोर गेम पसंद है, मे बी द बच्चे को ड्राइंग पसंद है, कलरिंग पसंद है, राइट, कौन सी रीडिंग पसंद है, राइट, क्या बच्चे को पसंद है। द चाइल्ड इज मेंशनिंग अबाउट द एक्टिविटीज, कौन सी है जो डिफिकल्ट लगती है, कौन सी जो इंजॉय करता है, और कौन सी फ्रेंड के साथ करनी अच्छी लगती है। एंड देन इसमें फीडबैक कैसे आएगा, पीयर फीडबैक फ्रॉम द क्लासमेट। आप इस तरीके से, जैसे रेडियो बटन हमारे होते हैं, यू कैन गिव द सेम, लाइक आई एम हेल्पफुल, बच्चा दूसरों की हेल्प करता है तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे बच्चों को कि कहाँ आप टिक कर रहे हो, नेवर कभी नहीं करते, मोस्टली करते हैं, या ऑलवेज करते हैं। इस तरीके से दे कैन गो हैड विद द peer assessment. I can share things, I can do activities together with others, मैं दूसरों के साथ एक्टिविटीज कर सकता हूँ, करता है ये बच्चा, तो दूसरे बच्चे उसको असेस कर रहे हैं, तो peer assessment हो रहा है। कब, कितना, मतलब इसमें नंबर नहीं दे रहे, they are just putting a tick on never, mostly or always, right? So now next is, it is mentioned this sheet can be filled after continuous observation, interaction and discussion with the child over a period of 2-3 months. Continuously observe करेंगे, एक दिन की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये शीट नहीं भरी जाएगी। ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट पेरेंट्स फीडबैक, राइट, माय चाइल्ड एंजॉयज पार्टिसिपेटिंग इन, नाउ द चाइल्ड इज राइटिंग, द पेरेंट इज राइटिंग, सॉरी, फॉर द चाइल्ड, की बच्चे को कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा जो है वो इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। द चाइल्ड एंजॉयज, मे बी उसको स्किपिंग, मे बी आउटडोर गेम्स, राइट, मे बी लिसनिंग टू द म्यूजिक, डांसिंग, क्या उसको पसंद है। तो द पेरेंट्स दे विल बी मेंशनिंग ओवर हियर, माय चाइल्ड कैन बी सपोर्टेड फॉर, कि मेरा बच्चा इस चीज में थोड़ा इंटरेस्ट दे रहा है, बट आई वांट, लाइक टीचर्स इफ दे वांट कैन प्रोवाइड सपोर्ट टू डू बेटर इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, राइट। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट आपको बता रहा है ऑलरेडी, नहीं, तो आपको इस तरह थ्रू पेरेंट से फीडबैक लेना है, तो दिस विल बी फिल्ड इन बाय द पेरेंट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन, इसके अलावा कुछ और मिसलेनियस इंफॉर्मेशन या आपको कुछ भी लगे जो बताना है, तो द पेरेंट दे ही कैन और शी कैन मेंशन द सेम। नाउ यहाँ पर ऐसा है कि नेक्स्ट इज अ पोर्टफोलियो, तो बच्चे का जो पोर्टफोलियो का एक पेज है कि जितने आपने डेवलपमेंटल गोल पहले मेंशन किए हैं, देखिए DG1 DG2 से रिलेटेड, यू कैन इवन मेंशन द पिक्चर्स एंड देन यू कैन राइट अबाउट दैट, कि बच्चा उसमें कंसर्न शो कर रहा है, एम्पैथी दिखा रहा है, बच्चा हेल्प कर रहा है, तो वो एक पोर्टफोलियो भी हो सकता है। एंड देन दिस इज हाउ यू कैन गो हेड विद दैट। See, display selected work done by the student in various experiential interdisciplinary tasks done in the class to fulfill the competencies in DG1, DG2, DG3. Developmental goals जो हमने तीनों हैं वो उसमें कवर करके उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो स्टिक कर सकते हैं। फॉर दैट यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द पेरेंट ऑल्सो, कि जब घर में बच्चा एक्टिविटीज में कैसे करता है वो पिक्चर्स भी आप मंगवा सकते हैं, उनको पेरेंट भी स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी ये पेरेंट से फिल करवाएंगे ये पेज। नाउ कैसे फिल कराएंगे, लेट द पेरेंट कम टू यू ऑन द PTM एंड लेट द पेरेंट राइट, राइट, पेरेंट्स विजिट करते हैं, आप उनसे फीडबैक के वहां पे आप फिल करवा सकते हैं उनके साथ, राइट। घर में भी भिजवाया जा सकता है, बट आई मीन दैट्स एंटायरली अप टू यू हाउ यू वांट टू गो हेड विद दैट। मे बी यू कैन टेक द फीडबैक फ्रॉम
द पेरेंट्स, और आप अपने हाथों से भी उसको फिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, उस पर आप मंगवा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फिल इट। बिकॉज अगर टाइप आपको बनाना है तो पेरेंट की इन्फॉर्मेशन आप टाइप कर सकते हैं, बिकॉज आजकल हम रिपोर्ट कार्ड हैंड रिटन की बजाय टाइप ही देना चाहते हैं, तो पेरेंट तो आके टाइप नहीं करेगा। यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन, आप राइटिंग में ले सकते हैं, पीटीएम के टाइम पर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं, उसको कंपाइल करके यू कैन टाइप एंड देन यू कैन प्रिंट इट। So go ahead and design this kind of holistic progress card HPC for your children. Stay tuned for more, my lovely educators. Thank you. Have a nice day.